we will move towards the types of spectroscopy. It is further divided into two types: absorption spectroscopy and emission spectroscopy. In absorption spectroscopy, as the name suggests, the energy or the electromagnetic radiation is being absorbed by the molecule, and this is further divided into UV spectroscopy, IR spectroscopy, NMR, then colorimetry or visible spectroscopy. So these all are atomic absorption spectroscopy. And the second type of spectroscopy is emission spectroscopy, in which the radiation gets emitted by the molecules. So once a particular molecule absorbs energy, it is always that it will also emit that, because what happens is, once it takes the energy, the electron moves from lower energy to higher energy level, and when it moves to higher energy level, what happens is the electron gets destabilized because energy has been increased. So when energy has been increased, it has to again dissipate that energy, and it will move back to its original position in order to get stability. Once it moves to the higher energy level, the energy is increased. As energy is increased, stability is decreased. So in order to gain the stability, it will again emit the absorbed light, and that spectroscopy will be termed as emission spectroscopy. So in emission spectroscopy, what happens is the radiation emitted by the molecule will be studied, and the examples of emission spectroscopy are flame photometry and fluorometry. Then most common types of chemical analysis includes atomic spectroscopy, UV visible spectroscopy, infrared spectroscopy, Raman spectroscopy, and NMR. These all types of spectroscopies, UV visible, infrared, and NMR, all are very important because they are the data which we acquire by from this spectroscopy is used for structure elucidation. So जब कभी भी हमको किसी भी अज्ञात यौगिक की संरचना ज्ञात करनी होती है, तो हम किसका सहारा लेते हैं? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लेते हैं, अवरक्त यानी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लेते हैं, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लेते हैं और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लेते हैं। ये सब मिलकर एक और तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि एक सच्ची स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं, इट इज़ नॉट ए ट्रू स्पेक्ट्रोस्कोपी. That mass spectroscopy is also used for structure determination. So all these four gets combined to determine the structure of unknown compound. किसी भी अज्ञात यौगिक का अगर हमको संरचना ज्ञात करनी है तो हम इन चारों की सहायता लेंगे, यूवी विजिबल की भी लेंगे, अवरक्त की भी लेंगे, एनएमआर की भी लेंगे और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की भी सहायता हमको लेनी पड़ती है. Now, the principle of UV visible spectroscopy. This UV visible spectroscopy is based on the absorption of ultraviolet or visible light. यानी अगर हम जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा का केवल यूवी और विजिबल जो भाग है उस रेंज में ही अवशोषण कर रहे हैं, तो वह जो है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाएगी. सो द प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी लाइट और द विजिबल लाइट बाय केमिकल कंपाउंड्स. तो कोई भी यौगिक अगर वो दृश्य और पराबैंगनी क्षेत्र में जो है अवशोषण करता है तो वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है. विच रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट स्पेक्ट्रा. प्रत्येक यौगिक के लिए जो भी हमको स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा वो भिन्न भिन्न होगा, क्योंकि उसके द्वारा अवशोषित ऊर्जा का मान भी अलग अलग होता है, इसलिए स्पेक्ट्रा भी अलग अलग होता है. एज लाइट इज एब्जॉर्ब बाय मैटर. मैटर मीन्स वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है. तो मैटर मीन्स द्रव्य. तो द्रव्य द्वारा जब दृश्य प्रकाश का या यूवी प्रकाश का अवशोषण होता है तो क्या होता है उसके अंदर? देयर इज ए इंक्रीज इन द एनर्जी कंटेंट ऑफ द एटम और द मॉलिक्यूल. तो
एटम और मॉलिक्यूल की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी विजिबल लाइट. व्हेन यूवी रेडिएशन आर एब्जॉर्ब्ड, दिस रिजल्ट्स इन एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल. यानी वो लोअर एनर्जी लेवल से लेके और हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है. इसके पश्चात हम देखेंगे कि यूवी विजिबल और आईआर रीजन जो है वो किसके, उससे क्या होता क्या है कि जब हम किसी भी यूवी या विजिबल लाइट का अब्जॉर्प्शन करते हैं तो उससे वाइब्रेशनल यानी जो कंपन ऊर्जा स्तर हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होता है, वाइब्रेशनल. और अगर आईआर क्षेत्र या आईआर रेंज में अगर अवशोषण हो रहा है तो उसके अंदर घूर्णन ऊर्जा स्तर यानी रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में जो है ट्रांजिशन होता है. सो यूवी विजिबल जो क्षेत्र है उसके अंदर इतनी ऊर्जा होती है कि वो क्या करता है कि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में और हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में अपने आप जो है एब्जॉर्प्शन और इमिशन जो है ट्रांजिशन उसके अंदर होते रहते हैं. यूवी लाइट जो है उसमें विजिबल से ज़्यादा एनर्जी होती है बिकॉज उसका जो वेवलेंथ है वो विजिबल से कम है. तो यूवी लाइट कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय द मॉलिक्यूल और इस यूवी लाइट से क्या होगा, द मॉलिक्यूल गेट्स एक्साइटेड फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स टू एक्साइट. इस यूवी लाइट से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करेंगे, एनर्जी को गेन करेंगे और एनर्जी को गेन करने से लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे. सच ट्रांजिशन कैन बी स्टडीड extensively to understand the binding energy of the corresponding electron undergoing the transition. और इन ट्रांजिशन से, इन संक्रमणों से हम क्या स्टडी करेंगे, हम बाइंडिंग एनर्जी जो उसको बांध के रखता है इलेक्ट्रॉन को उसके बारे में, उसको लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में एक्साइट करने में कितनी एनर्जी चाहिए हमको इसका पता लग जाता है. और हम जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इन सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कार्बनिक यौगिकों के अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है और उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं. सो सिंस पाई इलेक्ट्रॉन्स आर मोस्ट लूजली बाउंड इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी yields a lot of information about the degree of unsaturation in a molecule. यानी अगर हम देखते हैं कि किसी भी कार्बनिक यौगिक द्वारा ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है तो, और वो भी किस क्षेत्र में हो रहा है, यूवी क्षेत्र में हो रहा है, तो वह एनर्जी क्या करेगी, पाई इलेक्ट्रॉन्स को जो कि सबसे लूजली बॉन्डेड होते हैं उनको लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में ट्रांजिशन करने में सक्षम होती है. इसलिए जब कभी भी हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन करेंगे तो हमें किसके बारे में सूचना मिलेगी, हमें अनसेचुरेशन यानी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के बारे में हमें सूचना प्राप्त होगी. वी विल गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इन ए मॉलिक्यूल. व्हेन द वेवलेंथ ऑफ द ट्रांजिशन एक्सीड्स फ्रॉम यूवी रेंज, यानी वेवलेंथ बढ़ा दी हमने, कहाँ से बढ़ा दी, यूवी से हम किस में आ गए, दृश्य क्षेत्र में आ गए. तो यूवी जो हमारा रेंज है वो है 1000 नैनो एंगस्ट्रॉन्ग से लेके 4000 एंगस्ट्रॉन्ग तक. और अगर हम 4000 से 8000 की तरफ बढ़ते हैं तो यानी हम किस क्षेत्र में आ गए, हम आ गए विजिबल क्षेत्र में. तो विजिबल क्षेत्र में क्या हो गया, वेवलेंथ बढ़ गई यानी ऊर्जा में कमी आ गई. तो ये जो विजिबल रेंज है, इस विजिबल रेंज के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए एक कंडीशन है कि कलर्ड होना चाहिए. क्यों, क्योंकि दृश्य क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसे हमारी आँखें जो हैं देख सकती है. यानी अगर हम कोई पदार्थ जो है दृश्य क्षेत्र में अवशोषण कर रहा है तो वो क्या करेगा, अपन को एक स्पेक्ट्रा देगा, कलर्ड स्पेक्ट्रा देगा, और वो पदार्थ जो है जिस रंग का अवशोषण हो रहा है उसके संगत रंग का दिखाई देगा. सो जब हम यूवी रेंज से विजिबल रेंज में आ जाते हैं तो हम किसी भी मॉलिक्यूल अणु में उपस्थित रंग को समझा सकते हैं. बिकॉज इन विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी द रेंज इज फ्रॉम 4000 to 8000 एंगस्ट्रॉन्ग
और 380 टू 760 नैनोमीटर। और ये जो क्षेत्र है इसमें हम जानते हैं कि स्पेक्ट्रा जो होता है वो बेनी आह पिनाला यानी वॉयलेट से लेके लाल तक जो है इसके अंदर अपन को कलर दिखाई देते हैं, और वो डिपेंड करता है कि किस रंग का अवशोषण किया है। तो यूवी और विजिबल ये दोनों स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इसके अंदर हम 1000 से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक जो है उस क्षेत्र में अध्ययन करते हैं। द ह्यूमन आई जो हम आँखों से जिसे दे सकते हैं इज ओनली सेंसिटिव टू ए टाइनी प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो बहुत फैला हुआ है, उसमें से बहुत थोड़ा सा यानी 380 से 780 नैनोमीटर का जो रेंज है उसी के अंदर हमारी आँखें जो है वो देख सकती हैं और रंग को पहचान सकती है। इसके पश्चात a close relationship exists between the color of the substance and its electronic structure, कि किस रंग का प्रकाश उसने अवशोषित किया है उसी के संगत रंग का वो पदार्थ नज़र आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम बात करते हैं टाइटेनियम के जली विलयन का, तो टाइटेनियम के जली विलयन में क्या होता है कि टाइटेनियम जल के अणुओं के साथ में एक संकुल बनाता है और वो हमेशा 500 नैनोमीटर के प्रकाश यानी कि जो हरे कलर का प्रकाश होता है उसका अवशोषण करता है, लेकिन हरे प्रकाश का जो संगत कलर है वो नीला होता है, इसीलिए टाइटेनियम का जली विलयन नीले रंग का होता है। ए मॉलिक्यूल और आयन will exhibit absorption or visible or UV radiation when radiation causes an electronic transition। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आ गई है, वो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में जाता है। फिर दूसरे तरह का ट्रांजिशन होता है वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। वाइब्रेशनल ट्रांजिशन में क्या होगा? कंपन ऊर्जा स्तर एक लोअर एनर्जी के कंपन ऊर्जा स्तर से हायर एनर्जी के कंपन ऊर्जा स्तर में अगर जा रहा है तो वो कहलाएगा वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। सो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है वो हायर एनर्जी का होता है और वाइब्रेशनल एनर्जी के लिए हमको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जब भी होगा तो उसके साथ में कई सारे वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी होंगे और उसके साथ साथ कई सारे घूर्णन यानी रोटेशनल ट्रांजिशन भी होंगे। सो द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय ए सैंपल ऑफ UV और विजिबल रीजन इज अकम्पनीड बाय ए चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल इन द सैंपल। तो जब कभी भी दृश्य या पराबैंगनी प्रकाश का अवशोषण होगा तो उस अणु के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हैं उसके अंदर परिवर्तन आएगा। द एनर्जी सप्लाइड बाय द लाइट विल प्रमोट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल्स टू हायर एनर्जी एक्साइटेड ऑर्बिटल्स और द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो जब कभी ऊर्जा का अवशोषण होगा तो उस अणु में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अपनी ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल यानी एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। और हम जानते हैं कि जो भी ट्रांजिशन होगा वो इन सारे जो अलग अलग तरह के ऊर्जा स्तर हैं उनके बीच में होगा। सबसे लोअर एनर्जी जो होती है वो सिग्मा बॉन्डिंग की होती है, उसके बाद में पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आता है, उसके बाद में नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल आता है और उसके बाद में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल आते हैं। और इन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के बीच में ही इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है। द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स टू नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यानी सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार। इस तरह से 4 तरह के जो हैं उसके अंदर संक्रमण होते हैं। सो ए ट्रांजिशन इन विच बॉन्डिंग एस इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल, सॉरी एस की जगह सिग्मा आएगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू एन एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल इज रेफर्ड एज सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। In the same way, if a particular electron is excited from pi to pi star, then this transition is called as pi to pi star transition. One electron of a lone pair
non-bonding electron, it will be having n electrons, and it can from n electron n energy level it can transfer to anti-bonding electron, and it will give rise to n2 pi star and n2 sigma star. So non-bonding electron will give rise to two types of transition, n2 sigma star, n2 pi star, whereas electron with a high energy absorption will undergo sigma 2 sigma star transition. This can be well understood by a particular diagram. This diagram will be showing you the transitions which occur by UV and visible light. तो जब कभी भी UV और विजिबल लाइट का अवशोषण होता है तो किस प्रकार के संक्रमण हमें देखने को मिलते हैं। पहला जो संक्रमण जिसके लिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन किस में होगा? ऐसे पदार्थ जो कि संतृप्त हैं यानी सैचुरेटेड हैं, जैसे एल्केन्स। तो एल्केन्स के अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जहाँ पर है वहाँ पर हम देखेंगे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके लिए सर्वाधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, और सर्वाधिक एनर्जी किस में होती है? यूवी लाइट में होती है। तो यूवी क्षेत्र में जब कभी भी अवशोषण होगा तो वह अवशोषण सिग्मा टू सिग्मा स्टार को या वो n2 सिग्मा स्टार को, ऐसे संक्रमणों को पैदा करेगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो एक और तरह का यहाँ संक्रमण बता रखा है, वो है पाई टू पाई स्टार, सिग्मा पाई टू पाई स्टार। तो पाई टू पाई स्टार जो है वो यहाँ पर ये दिखा रखा है पाई टू पाई स्टार, और एक बता रखा है सिग्मा टू n2 पाई स्टार। सो चार तरह के जो है ट्रांजिशंस पॉसिबल होते हैं। पहला सिग्मा टू सिग्मा स्टार, दूसरा दिस n2 सिग्मा स्टार, देन पाई टू पाई स्टार एंड n2 सिग्मा स्टार। इन चार तरह के संक्रमणों का ही हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे, और ये सब जो ट्रांजिशंस हैं वो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के अंदर होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, हम जो डबल बॉन्ड है उसके बारे में पता लगा सकते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड मीन्स उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन है, और अगर पाई इलेक्ट्रॉन है तो उसके अंदर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। उसके लिए हमें अलग से एक रेखा प्राप्त होगी स्पेक्ट्रा में। अगर वो संतृप्त यौगिक है तो उसके अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे और सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमण उसमें देखने को मिलेगा। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन यूवी लाइट के द्वारा होगा। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी विल गिव यू हिंट अबाउट द सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो आज इस पहले लेक्चर के अंदर हमने केवल इंट्रोडक्शन प्राप्त किया है कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, यूवी विजिबल क्षेत्र क्या होता है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऊर्जा के अवशोषण के द्वारा क्या क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज इस फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी है। अब हम सेकंड जब लेक्चर देखेंगे तो उसमें हम जो है कवर करेंगे, हमारे नेक्स्ट जो सिलेबस के अंदर है वो है बियर लैम्बर्ट लॉ को देखेंगे, क्योंकि वेरियस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हमने देख लिए, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बाद में अब हम आएंगे बियर लैम्बर्ट लॉ पे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की जब हम बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है ये किसके द्वारा संभव है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है वो यूवी विजिबल लाइट के द्वारा ही संभव है, क्योंकि इतनी एनर्जी उसमें होती है कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन को जो है वो पहुंचा सकती है। और ई इलेक्ट्रॉनिक इज ग्रेटर देन ई वाइब्रेशनल एंड ई वाइब्रेशनल इज ग्रेटर देन ई रोटेशनल। मतलब सबसे कम ऊर्जा हमको रोटेशनल यानी घूर्णन संक्रमण के लिए चाहिए होती है, उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी हमको चाहिए होती है वाइब्रेशन यानी कंपन संक्रमणों के लिए, और सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें चाहिए होती है इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए। तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं, जिसके अंदर सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सिग्मा टू पाई स्टार, देन पाई टू पाई स्टार, n2 पाई स्टार और
N2 सिग्मा स्टार, ये चारों तरह के संक्रमण इसके अंदर आ जाते हैं। अब बीयर-लैम्बर्ट लॉ हम अपने दूसरे जो लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू।